F.W. Taylor is named as the father of scientific management. He is the person who first of all coined this term in the field of management, whereby he disclosed that there can be so many ways to perform a particular task, but there is only one best way. So you have to adopt that best way whenever you are performing tasks, whenever you are allocating the duties among your workers. Always go with the best. Never compromise with any other method except the best one. And always be logical, be scientific. Whenever you are taking any type of decision, don't go with the hit and trial method. मीन्स पंजाबी या हिंदी में बात करें तो तीर तुक्का नहीं चलाना. जो चीज लॉजिकल है, जो सिस्टमैटिक है, जो साइंटिफिक है, हम लोगों ने उसके साथ ही जाना है. When I talk about like Fuel has given 14 principles, he has also given 4 principles that we will discuss later on. But first of all, I wrote the techniques given by Taylor. So Taylor has given 6 techniques of scientific management. Functional foremanship. This is totally reverse of unity of command. Unity of command कहता था एक बंदे को एक टाइम पे एक ही बॉस ऑर्डर कर सकता है, लेकिन functional foremanship के अंडर he has divided the overall organization into 2 parts. One is planning department और इसका head हम planning in charge बोलते हैं, and another is what? Production in charge. तो इन दोनों बंदों के नीचे आगे 4 बंदे क्या होंगे? टीम में होंगे. जब मैं प्लानिंग की बात करती हूँ तो डिसिप्लिनेरियन है, कॉस्ट क्लर्क है, टाइम क्लर्क है, रूट क्लर्क है. ठीक है, इन सबका काम थ्योरेटिकल वर्क करना है. और अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो अगेन वी हैव द 4 foremen here और 4 clerks are there which we call repair boss, gang boss, etc. right? Quality inspector है. They all are being made in charge of their own field. They are being allocated certain duties and they are supposed to do that duties. So how many foremen are there under planning in charge? We have 4 foremen. And how many foremen are there under your production in charge? Again, we have 4 foremen, and all are being authorized to do the particular jobs, and they are supposed to do the work, whatever work is allocated to them. Okay, so I was just searching which name I skipped when I was speaking about the production in charge. We have speed boss. He will be guiding the workers to enhance their speed of job. Then we have gang boss. He will be responsible to make the machines and tools every time ready for the next day work. Then repair boss, he is in charge of maintenance and service to be done to the machines or equipments, etc. And inspector, he is finally going to check the quality of the products produced by the workers. So these are the 4 persons who will be working as per the instructions of प्रोडक्शन इन चार्ज. जब इनके नीचे मैं वर्कर्स की बात करूं तो आई हैव द वर्कर्स, राइट? तो हियर बाय द वर्कर्स आर गेटिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम 8 बॉसेस साइमल्टेनियसली. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कॉल दैट दिस टेक्निक इज डिनाइंग आउटराइटली यूनिटी ऑफ कमांड. टेलर का मानना है कोई नहीं, हमारा एक वर्कर 8 बॉसेस के ऑर्डर को भी क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है. सो नीड नॉट टू फॉलो द यूनिटी ऑफ कमांड इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Then I am talking about the second study, which we call method study. Method study always stresses the way to perform a particular task. किस ढंग से आपने उस काम को करना है, and always adopt the best way or best manner to complete that allocated task. जो काम आपको दिया गया है उस काम को करने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा बेस्ट के साथ जाना है. और बेस्ट क्या होता है? जिसमें टाइम कम से कम लगे, रिसोर्सेस कम से कम लगे और आउटपुट बहुत बढ़िया हो. So that method you have to choose. Then we have time study. So this study is going to check the average time being taken by average worker to complete a particular task. We will be announcing the standard time to complete a particular task. And with this study, you can have an idea that how many workers you will require to complete a particular task. जब आपने ये सोच लिया कि कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए और आपने हर वर्कर को टाइम बता दिया, you will also be counting कि मेरे पास उतने वर्कर्स हैं, जितना मैंने उन्हें टाइम दिया है उतने टाइम में मेरे को वो टारगेट अचीव करना है. तो आप नंबर ऑफ वर्कर्स भी क्या करोगे? इससे कैलकुलेट करोगे. कई बार क्वेश्चन आता है, नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट व्हिच हेल्प्स टू count the number of persons being required to complete a particular task. Then your answer will be time study. टाइम तो यहाँ पे कैलकुलेट करना ही है, टाइम बताना है वर्कर्स को कि आपके पास इतना टाइम है कंप्लीट करने का. अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है 10,000 बॉक्सेस बनाने का, राइट?
एक बॉक्स को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स। मींस मेरे को कितने वर्कर्स चाहिए होंगे? पहले तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं अगर एक बॉक्स को बनाने के लिए। इट मींस कि मेरे को कितने आवर्स चाहिए होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी आवर्स? 1000 कर लेते हैं। इट मींस कि आई नीड 500 आवर्स टू कंप्लीट। ठीक है, अब 2 घंटे एक बॉक्स को बनाने के लिए लगते हैं, 1000 बॉक्सेस को बनाने के लिए 500 आवर्स लगेंगे। मेरा हर वर्कर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल, मैं ये इन अ डे 5 आवर्स वो काम करता है, 5 आवर्स इन अ डे। एक वर्कर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है? काम करता है। ठीक है, और मैंने एक दिन में क्या बनाने हैं? इट मींस कि अगर 5 घंटे एक बंदा काम करता है तो कम से कम मेरे को 100 वर्कर्स चाहिए होंगे ताकि मेरे क्या हो जाए? 1000 बॉक्सेस क्या हो जाए? तैयार हो जाए। व्हाट आई डिड, 500 आवर्स डिवाइडेड बाय 5 आवर्स पर वर्कर। हर वर्कर ने 5 घंटे ही काम करना है। इट मींस कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 100 बंदे होंगे तभी एक दिन में मेरे कितने बॉक्सेस बनके तैयार हो जाएंगे? 1000 बॉक्सेस बनके तैयार हो जाएंगे। हैड इट बीन द टारगेट 2000, तो मेरे को कितने पर्सन चाहिए होंगे? 200 पर्सन चाहिए होंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। सो टाइम स्टडी हमें ये भी बताता है हाउ मेनी पर्सन आर नीडेड, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। देन इमोशनल स्टडी, when you are doing your job, you involve yourself in so many motions, in so many activities. That can be unproductive motions and productive motions. आपने productive motions को बना के रखना है, means productive motions वो है which are essential to complete the task. Like गोडाउन में जाके सामान लेके आना, ठीक है, फिर सामान को मशीनरी में इंसर्ट करना, फिर सामान जब बन के तैयार होता है उसे मशीन में से निकाल के उसकी पैकिंग करना. दिस ऑल आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. But once you are going to the godown and on the way you just see your friend and you start gossiping with him, this is unproductive activity. So टेलर कहता है सारी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज की आपने लिस्ट बनानी है और उन्हें बीच में से डिस्कार्ड कर देना है. जो एक्टिविटीज असेंशियल है काम को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ वही एक्टिविटीज आपने रखनी है, बाकी सारी एक्टिविटीज मीनिंगलेस है. इट मीन्स कि उसमें हमारा टाइम और रिसोर्सेज दोनों क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं. Then very important technique next I am discussing with you, that is simplification and standardization. सिंप्लीफिकेशन की मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, डोंट गो विद लॉट ऑफ वैरायटीज. लाइक इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग जेंट्स शर्ट, तो अगर आपको साइजेस के बारे में थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज हो, 38 साइज की है, 40 की है, 42 की है, कभी सुना 41 साइज की भी शर्ट है या 41.5 साइज की भी शर्ट है. जूतों के साइजेस अगर मैं देखूं तो 5 नंबर है, 6 नंबर है, कभी सुना है 5.5 नंबर है या 5.25 नंबर है, 5.25 साइज का कभी जूता सुना है. ठीक है, अगर कस्टमाइज करवाते हैं तो आपके साइज के अकॉर्डिंग बनेंगे. मार्केट में जो अवेलेबिलिटी है वो पर्टिकुलर साइजेस ही हैं. डन. तो आपने अपनी वैरायटी, सुपरफ्लुअस वैरायटीज नहीं बढ़ानी. वो वैरायटीज जो बिकती नहीं है, जो मार्केट में साइज की डिमांड ही नहीं है, उन्हें अननेसेसरली अपने साथ लेके नहीं चलो, क्योंकि उसके कारण आपको लॉस ही होने वाला है. सो सिंप्लीफाई द रेंज ऑफ द वैरायटी बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय यू. Then what is the meaning of standardization? To bring the uniformity in your production process. So always buy the quality raw material. Always use the sophisticated machinery, ताकि आपकी बनाई हुई प्रोडक्शन में एक स्टैंडर्डाइजेशन आए, मींस एक यूनिफॉर्मिटी आए. आपका बना सामान बंदा कहीं से भी खरीदे, he always feel that it is same. Like when I buy the Lux soap either from Jalandhar or from Ludhiana or from Noida, I always feel that it is same in packing, same in price, same in color, same in size, etc., etc. And this is going to happen because every company is following the standardization. You can have the example of iPhones. कोई भी सीरीज का फोन आप कहीं से भी ले लो, it will be having the same look, will be having the same size, will be having the same price. हाँ, प्राइस में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है. It depends upon the dealer or retailer, आपको वो कितना डिस्काउंट देता है MRP पे. So this can be the variation. Otherwise, प्रोडक्ट की लुक, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का वेट, that will remain same, and it is going to happen due to what? Standardization. Then one study I skipped in between, which we call fatigue study. So what is the meaning of fatigue study? Fatigue study means to provide the rest intervals to your workers, because it is a human psychology. When you are continuously working, you get tired. So you need the refreshment hours, you need the rest intervals. So how many rest intervals are there? At least 2 तो होने चाहिए.
10 और 15 मिनट्स टी ब्रेक होनी चाहिए, दिन में 2 बार, 8 घंटे की शिफ्ट है, 1 बार लंच ब्रेक भी होनी चाहिए। हो सके तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही अपने वर्कर्स को मील प्रोवाइड करो, और इफ दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन टिफिन्स एट होम देन प्रोवाइड एटलीस्ट हाफ एन आवर ब्रेक so that they can have their food and they can be ready for the next shift. Because जब बंदा भूखा है उसकी efficiency down होगी, he will fall sick, so that is going to be a big problem for our organization. So better to provide them the रेस्ट इंटरवल्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में सेम क्राइटेरिया होना चाहिए रेस्ट इंटरवल्स का? नो, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु इज वर्किंग इन 1 डिग्री और 0 डिग्री टेम्परेचर, राइट, कोल्ड स्टोरेज में वो काम करता है, तो उसको आधे आधे घंटे के बाद अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्रेक चाहिए होगी भाई. ठीक है, अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो आधे आधे घंटे के बाद अगर है तो उसको 16 ब्रेक्स चाहिए अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए. सो इट डिपेंड्स अपॉन द type of the job, that how many rest intervals, what is the frequency or what should be the frequency of rest intervals to be provided to the workers should be followed in my organization. There is no hard and fast rule for it, right? Differential piece-based system. Don't give the same amount of wages to every worker. Like एक वर्कर दिन में 10 यूनिट्स बना के जाता है और दूसरा सिर्फ 2 यूनिट बनाता है, लेकिन दोनों को वेजेस शाम को सेम मिले. It means कि I am not motivating my efficient worker and I am giving undue advantage to my inefficient worker. Inefficient means उसने 2 यूनिट ही बनाए. It means कि बाकी सारा टाइम वो गप्पे मारता रहा और बेकार बैठ के चला गया. So that type of worker is a huge burden on my organization. So just differentiate. इसीलिए नाम रखा differential. Differentiate between your efficient and inefficient workers. जो ज्यादा काम करेगा, जितने पीसेस वो ज्यादा बनाएगा, पीसेस वाइज में उसे क्या करूंगी, पेमेंट करूंगी. हर वो वर्कर जो 10 या 10 से कम, ठीक है, 10 या 10 से इक्वल, 10 के इक्वल यूनिट बनाएगा, उसे 50 रुपीज पर यूनिट क्या होगी, पेमेंट होगी. ठीक, जो बंदा 10 से ज्यादा बनाएगा उससे 55 रुपीज के हिसाब से मैं पेमेंट करूंगी. सो मिस्टर बी है जिन्होंने 12 यूनिट बनाए हैं, he will be getting payment as per 55 rupees per unit. This is what 66. So he will be getting 660. एक बंदा है जिसने 9 यूनिट बनाए हैं, ठीक है, लेस देन 10 है, उसको 50 के हिसाब से पेमेंट होनी है. इट मींस कि he or she will be getting 450 पर डे. दूसरा जो एफिशिएंट है उसको 660. So there is a difference of 210. This is what we call differential piece wage system. कहने को ये एक तरह से डिनायल है फ्यूल के इक्विटी प्रिंसिपल का. इक्विटी प्रिंसिपल कहता था सबको सेम दो वेजेस, लेकिन काम के अकॉर्डिंग देना भाई. सो टेलर इज वेरी मच राइट हियर. इफ वन वर्कर इज प्रोड्यूसिंग लेस, ही शुड गेट लेस सो दैट ही कैन गेट मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट डे. वो नेक्स्ट डे अपनी पूरी एफिशिएंसी को यूज करेगा और वो भी चाहेगा अगर मेरा कुलीग 660 पर डे अर्न कर रहा है तो व्हाई शुड आई नॉट. I should also work hard. I should rather ask from us from other colleagues कि आप इतने ज्यादा यूनिट कैसे बना लेते हो. So in that way he will be get motivated, his efficiency will get enhanced, and definitely this is going to be in the benefit of my overall organization. So such type of system should be prevailing in our organization. That was the stress under your differential piece wage system. Right? So on the basis of this I am writing one case study on the board and you will be calculating it. ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है सीबीएसई के सैंपल पेपर में. सो लेट्स सी डिफरेंशियल में क्या है. एक उसने केस स्टडी बनाई है. आई विल बी राइटिंग द केस स्टडी, रीड इट केयरफुली, देन वी विल डिसाइड इट्स आंसर. राइट, M Limited set up the standard task of 10 units per day. इसने अपने एम्प्लॉयज को बोला कि कम से कम 10 यूनिट्स तो एक दिन में बनाने हैं एक बंदे ने. द पीस वेज सिस्टम ₹50 पर यूनिट फॉर एफिशिएंट वर्कर, ₹50 फॉर जो ये 10 यूनिट बना लेंगे मींस वो एफिशिएंट है, फॉर एफिशिएंट वंस, and ₹40 per unit for inefficient one. Right? जो 10 से कम बनाएंगे वो inefficient होंगे, and ₹40
फॉर इनएफिशिएंट वंस। समझ आ रहा है आपको केस? अब हुआ क्या, वर्कर ए produced 9 units, worker B produced 11 units on a certain day, एक दिन। वर्कर ए मीन्स ये इनएफिशिएंट है, जब ये इनएफिशिएंट है तो इसको 40 रुपए के हिसाब से पेमेंट होगी, मेरे अकॉर्डिंग इसको 360 मिलेगा। और बी क्या है, हमारा एफिशिएंट वर्कर है, उसको कितने के हिसाब से पेमेंट होगी, 50 के हिसाब से, मीन्स उसको 550 मिलेगा। एम आई राइट? ठीक है, इतना पता चल गया, ये इनएफिशिएंट है, ये एफिशिएंट है। आपसे पूछा क्या, What is the difference in their earnings as per differential piece-based system? दोनों के में कितना डिफरेंस है, 550 में से 360 माइनस करो, so there is a difference of, हाँ जी 190। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन ही 190 है, दूसरी ऑप्शन 210 है, तीसरी ऑप्शन 90 है, एंड फोर्थ में उसने लिखा can't be determined. Why not? We can determine it. So there is a difference of their earnings, that is rupees 190. और ये आपको केस आता होगा, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम आता होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर इट, राइट? लेट्स डिस्कस वन मोर। Yes, I am reading one case study. Listen it carefully. Mr. Pawan used to manufacture packaging boxes using labor. So, अपने वर्कर्स को यूज करके वो पैकेजिंग के लिए बॉक्सेस बना रहा है, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं जैसे, एज दे वर इजिली अवेलेबल। लेबर मतलब वर्कर्स इजिली मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको हेल्प से वो बॉक्सेस बनाता है। बट हिज सन एडवाइज्ड हिम, उसके बेटे ने उसे क्या एडवाइस किया, बट हिज सन एडवाइज्ड हिम टू मैन्युफैक्चर देम यूजिंग मशीन्स, कि मशीन से फिनिशिंग ज्यादा आएगी, हाथों से बना सामान और मशीन से बने सामान में फर्क रहता है भाई, विच विल रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम, बहुत जल्दी बन जाएगा उसका बेटा कहता है, और कॉस्ट भी हमारी कम लगेगी। मिस्टर पवन डिड सो, उसने अपने बेटे की बात मान ली, एंड द क्वालिटी ऑफ हिज प्रोडक्ट आल्सो इंप्रूव, क्वालिटी भी अच्छी हुई। विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर, मेथड स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम। मेरे हिसाब से मेथड स्टडी होगा, बिकॉज एक काम को करने के कई ढंग होते हैं, पहले वो मैनुअली कर रहा था, उसने बेस्ट वे अडॉप्ट किया जिसके कारण कॉस्ट भी कम हो गई और सामान की क्वालिटी भी क्या हुई, इंप्रूव हुई। सो लेट मी चेक इट। मेथड स्टडी 92 का देखते हैं। मेथड स्टडी इसने लिखा है, दिस आई एम टेलिंग यू दैट मेथड स्टडी होगा इसका आंसर। लेट्स सी, बी। ठीक है जी, मेथड स्टडी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। द टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय वर्कमैन विद रीजनेबल स्किल्स एंड एबिलिटीज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसमें वर्कर्स के लिए काम करने के लिए टाइम फिक्स किया जाता है, उस टेक्निक का नाम बोलो। सो दिस टेक्निक इज टाइम स्टडी भाई। टाइम स्टडी इज अ टेक्निक जहां पे हर वर्कर को बताया जाता है कि आपने कितनी देर में अपना काम क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो इसका आएगा टाइम स्टडी, ये भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा है। चलो आगे चलते हैं। इन अ फैक्ट्री द टूल बॉक्स वॉज केप्ट अंडर द टेबल ऑफ एवरी वर्कर। जो भी वर्कर्स काम करने को आते हैं, हर एक के टेबल के नीचे हमने टूल बॉक्स रखा हुआ है, जो भी उनको स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए या कोई छोटे मोटे इक्विपमेंट्स चाहिए वो हम लोगों ने टूल बॉक्स में रखे हुए हैं, जैसे हर बंदे की गाड़ी में अलग से टूल बॉक्स रहता है, ठीक है। द वर्कर हैज टू बेंड टू पिक देम अप एंड देन टू कीप इट बैक। हर वर्कर को झुक के वो पहले टूल निकालना पड़ता है और फिर दोबारा वो बीच में रख देता है। The supervisor observed it and suggested to keep it on the stool placed near the workers to eliminate the unproductive movement. बार बार अगर वो झुक के सामान निकालते हैं तो हो सकता है किसी की बैक में पेन होनी शुरू हो जाए। एक सुपरवाइजर है जो वर्कर्स के ऊपर चेक रख रहा था, उसने ये बात नोटिस करी और उसने बोला व्हाई नॉट टू कीप दिस टूल बॉक्स ऑन अ स्टूल, ताकि उन्हें झुकना ना पड़े, उनके बिल्कुल बैलेंस के ऊपर वो सामान पड़ा हो और वो आसानी से उसे उठा लें। इट मींस कि यहाँ पे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रिड्यूस किया गया है। तो हमारा टेलर यही कहता था अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जितनी हो सके हम लोगों ने कम करनी है, मिनिमाइज करनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर मोशन स्टडी। 90th का देखिए मोशन स्टडी है। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपसे यही पूछा है। द सुपरवाइजर ऑब्जर्व्ड इट and suggested to keep it on a stool placed near the worker to eliminate the unproductive movement. The technique used by supervisor is dash.
So your answer will be, it is motion study. Okay. Pick out the odd one out. अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर कौन कौन से बंदे बोले थे भाई? स्पीड बॉस बोला था, रिपेयर बॉस बोला था, वी हैव गैंग बॉस एंड वी हैव इंस्पेक्टर, राइट? अगर प्लानिंग इन चार्ज के अंडर मैं बोलूं तो इट वाज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जिसने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी है, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिसिप्लिनेरियन. सो ये चारों कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए. अब आपने ऑड वन आउट चूज करना है. नंबर 1 ऑप्शन स्पीड बॉस, सेकंड इंस्पेक्टर, थर्ड डिसिप्लिनेरियन एंड द फोर्थ इज रिपेयर बॉस. डिसिप्लिनेरियन को छोड़ के बाकी तीनों आपके प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर काम करने वाले बंदे हैं. डिसिप्लिनेरियन इज द person who is working as per the instructions of planning in charge. So disciplinarian is going to be the odd one out. ठीक है? आपको जब तक कैटेगराइजेशन नहीं पता होगी, you can't remember it in your paper. I'm repeating the same sentence again. When we talk about the production manager के अंडर कौन कौन से बंदे काम करते हैं? who are directly related with production. प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए स्पीड बॉस चाहिए, मशीन और टूल्स को रेडी रखने के लिए गैंग बॉस चाहिए, मशीन्स की रिपेयर्स के लिए रिपेयर्स बॉस चाहिए, और जब सामान बन के तैयार हो जाता है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्टर चाहिए. सो वी कैन मेक द नेम लाइक दिस, SGRI. और कुछ बन सकता है? सर बना लो, सर जी बन जाएगा. यस, SIRG. सो ये सारे क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर हैं और प्रोडक्शन मैनेजर को ये सर जी कहते हैं. So, S का मतलब क्या हुआ? स्पीड. I का मतलब क्या हुआ? इंस्पेक्टर. R का मतलब क्या हुआ? रिपेयर बॉस. और G का मतलब क्या हुआ? गैंग बॉस. सो लाइक दैट वे यू कैन लर्न द थिंग्स. डन. सो अगले कौन से रह गए हमारे? उसका भी बना लेते हैं. वहां पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क, वहां पे भी R वाला है, T टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, एंड D. ये क्या बनेगा भाई? रिट बना ले, डर्ट बन जाना. यस, डर्ट बना लो. प्लानिंग इंचार्ज के नीचे डर्ट बन गया. डी का मतलब डिसिप्लिनेरियन, आई का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर का मतलब यहाँ पे दिस इज व्हाट, रूट क्लर्क. वो बताएगा कि आपको पहला स्टेप कौन सा करना है, सेकंड स्टेप कौन सा करना है. टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. सो ये डर्ट से मैंने बना दिया, वो मैंने सर्जी से बना दिया. सो लाइक दैट वे यू कैन लर्न चार बंदे कौन से काम करते हैं हमारे प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर. ओके. Dash aims at determining the labor cost. Method study, motion study, time study, fatigue study. मेरे हिसाब से टाइम स्टडी होगा. टाइम स्टडी में हमें ये भी पता चलता है कितने बंदे हमें चाहिए होंगे और कितना हमारा. मेथड स्टडी में तो है नहीं, फटीग में तो रेस्ट इंटरवल है 38 का. टाइम स्टडी में कितने बंदे चाहिए और कितनी कॉस्ट लगेगी हमारी, वो भी टाइम स्टडी में क्या होता है? डिटरमिन होता है. सो विच स्टडी हेल्प्स अस टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, टाइम स्टडी है. नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड एज वेल एज द अमाउंट यू नीड टू स्पेंड टू गेट द कंप्लीशन ऑफ द टास्क. सो दैट इज व्हाट टाइम स्टडी. एस्पिरिट डी कॉर्प्स मींस डैश. कल ये डिस्कस किया था. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. एकता में बल है. ठीक है, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ आपने याद रखना है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की टैगलाइन क्या थी भाई? वन हेड वन प्लान. मींस एक ही उस ग्रुप का क्या होगा? हेड होगा. जैसे वो प्लानिंग करेगा आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और ग्रुप के सारे बंदे उसकी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? काम करेंगे. दिस इज वन हेड वन प्लान. मींस अपनी डफली अपना राग नहीं अलापना, अपनी खिचड़ी अलग अलग नहीं पकाना. जैसा आपका ग्रुप लीडर बोलेगा आपको वैसे ही काम करना है. राइट. मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वी हैव डिस्कस्ड. कल करेंगे प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस एंड आई हैव सर्टेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन. Before that I have few questions related to these studies. Considering the fact that it is difficult to find one single person with all needed qualities. एक बंदे में सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती. टेलर ने क्या बोला? हमें 8 बंदे अलग अलग अपॉइंट करने हैं. टेलर suggested appointment of specialists who are assigned jobs according to their qualities. क्योंकि एक बंदे में सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती, इसलिए टेलर ने 8 बॉसेस अपॉइंट करने को बोला और जो जो काम उन्हें दिया जाएगा वो अपना काम सही ढंग से करेंगे. आइडेंटिफाई दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ऑब्वियस है, दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप. राइट.
Then the formal lines of authority and communication that runs from top to bottom in an organization is given by. Formal lines of authority, कल बनाई थी ना एक chain, inverted V. So this was named as what? Your scalar chain. इसने option क्या दी है? Motion study, scalar chain, method study, discipline. So it is going to be scalar chain. Method study implies, I am reading the options. Method study में क्या है? Always go with the best. एक काम को करने के बहुत सारे ढंग हो सकते हैं. You just have to search the right or the best way to do that particular task. Best way or best manner to do that particular task. देखते हैं कौन सी लाइन मेरी बात को सिग्निफाई कर रही है. पहला, स्टडी मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग. मूवमेंट्स तो मोशन स्टडी में होता है, ये तो सीधा छोड़ दो. जब कभी वो मूवमेंट्स की बात करेगा वो मोशन स्टडी होगा. फाइंडिंग आउट बेस्ट वे आ गया सेकंड पॉइंट. वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर. मेरे हिसाब से ये होना चाहिए. फिर भी थर्ड पढ़ते हैं. फाइंडिंग आउट द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल. वो तो होता ही फैटिग स्टडी में है. फैटिग स्टडी में हम रेस्ट इंटरवल्स देखते हैं. मोशन स्टडी में हम प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स के बारे में देखते हैं, मोशंस के बारे में देखते हैं. सो व्हेनेवर ही इज टॉकिंग अबाउट वन बेस्ट वे, इट मींस कि ही इज टॉकिंग अबाउट मेथड, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी द सेकंड line which signifies your method study. Yes, I was talking about assertion reason. Let's see that. चलिए जी, assertion I am reading. Motion study helps to improve the efficiency of the workers. क्योंकि unproductive movements हमने निकाल देनी है तो एफिशिएंसी डेफिनेटली वर्कर्स की बढ़ेगी. जैसे अपनी माइंड में एग्जांपल रखो, कहीं पे टूल बॉक्स टेबल के नीचे रखा था तो बार बार उसे झुक के वर्कर को वो टूल बॉक्स में से टूल्स निकालने पड़ते थे और फिर दोबारा से उसे वापस रखना पड़ता था. लेकिन वही टूल बॉक्स अगर उसके बिल्कुल बैलेंस के ऊपर एक स्टूल में रख दिया गया तो उसको बार बार झुकना नहीं पड़ेगा. सो एफिशिएंसी बढ़ती है. assertion से I agree, assertion is correct. Reason, it eliminates the wasteful and inefficient motions by the workers and machines to identify the best method of work. Best method of work तो नहीं होगा. So R is not the right explanation, I think. Let me check 113. A is correct, efficiency बढ़ती है, लेकिन best method नहीं है मेरे according. This is 113. इसने A ही लिखा. Because it eliminates, हाँ वो तो ठीक है. Because it eliminates wasteful and efficient motions by the workers. क्योंकि मोशन स्टडी में हम लोग बेकार वाली जो मोशंस हैं वो बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं. तो ठीक है जी, आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आगे चलते हैं. गैंग बॉस इज वन ऑफ द प्लानिंग फंक्शनल फोरमैन. नो, गैंग बॉस इज प्रोडक्शन इंचार्ज का बंदा है. सो ए इज इनकरेक्ट. गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन. वो ठीक है. सो आर इज करेक्ट, ए इज फॉल्स. 114 का डी, डी यही होता है ना. ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट. डन. Fatigue study, assertion बोल रही हूँ. Fatigue study is important to maintain the efficiency level of the workers. Rest हम लोग इसीलिए देते हैं ताकि उनकी efficiency बढ़े. The rest interval will enable the workers to regain their lost stamina. ठीक है, जो स्टेमिना वो लूज कर चुके होते हैं उसे दोबारा रीगेन करने के लिए हमें उन्हें रेस्ट इंटरवल देना है. मेरे को लगता है दोनों ही करेक्ट है. 115 का ए ही है. So R is the correct explanation of A, because rest interval will enable the workers to regain their lost stamina. Done? So सारी स्टडीज के बारे में इसने हमें बताया. चलो एक और देखो, assertion. Method study determines the standard time taken. पहले ही गलत. Method study never helps to determine the time. Time study helps to determine the time to be taken by an average worker to complete a task. R सुनो, differential piece-based system differentiates efficient and inefficient workers and links the wages and productivity. जितना वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उन्हें wages पे करी जाएंगी. It means कि R is correct but A is false, because A में method study हमें कभी time नहीं बताती, time study हमें time के बारे में बताती है. So that is enough for today. बाकी हम लोग कल continue करेंगे when you will be sitting in my class, right? So next is your 5th period is of accountancy, that is extra class students. So they will appear for extra class. We will be revising the ratio, and that chapter you all need to prepare for your practical exam as well, because I'm going to ask the question comprising of 5 marks. Written paper भी रहता है भाई आपके accountancy के practical में. So 5 number का आपका written होगा, which will be from your ratio analysis only, and 5 marks will be from your viva, and the viva I am going to ask from the whole syllabus. Done? So this is a right time.
पिक 1 चैप्टर डेली, उसे थॉरोली रिवाइज करो, पहले अपने गरेवाल की बुक में से, फिर सैंपल पेपर में से उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करो, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर कट आइडिया. नाउ देयर इज नो टाइम फॉर रेस्ट. You have to utilize even the second of a day. Single second you need not to waste. ठीक है, if you really want to score high.